Hello kids, welcome back to our English class. In today's class, we are going to solve the remaining exercise for the lesson called The Little Fir Tree. So, in our previous class, we solved the exercise. So, this is the exercise that we solved, right? वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व किया जहाँ पे हमें सेंटेंसेस को फिर से राइट करना है, जो सर्कल वाले जो वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखकर. So we solved this exercise like this and then we wrote the opposite words using un and im, right? ये क्या है? प्रीफिक्स है. un and im, these are prefix जो हम वर्ड्स के आगे लगाते हैं. And what do we get in वर्ड्स के? When you add these prefixes like un and im, we get opposites of these words. सो हैप्पी का अनहैप्पी था, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर. ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज. एंड देन देर वॉज अ पैसेज. ये एक पैसेज, एक पैराग्राफ है. इसमें ब्लू कलर के जो वर्ड्स हैं उनके हमें क्या लिखने थे? opposite words. So these words also we have written. For example, loved का hated, go out का come in, come का go, everywhere का nowhere, down का up, nowhere का everywhere, lost का found, crying का laughing, happy का sad. So we have written this: hated, come in, go, nowhere, up, found, everywhere, laughing. This is L, laughing. And then the sad. Then we did the punctuation wala exercise. Here we added here we rewrote the sentences with capital letters wherever needed. Proper noun को हम क्या करते हैं? जब भी first of all जब भी sentence start करते हैं, the first letter should be capitalized. sentence का हर पहला लेटर क्या रहता है? सेंटेंस का पहला लेटर रहता है कैपिटल. ओके, एंड यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स भी हैं, लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम. अमरजीत क्या है? नाउन है. कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन. सो अमरजीत एक नाम है, इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा. इवन इफ यू आर राइटिंग योर नेम, सो यू विल राइट योर नेम्स फर्स्ट लेटर कैपिटल, वो चाहे सेंटेंस में कहीं पे भी हो. देन इंडिया गेट भी प्रॉपर नाउन है. सो ING विल बी व्हाट? ING विल बी कैपिटलाइज्ड. एंड इंडिया गेट, ये दो वर्ड्स हैं लेकिन दिस इज अ कंपाउंड नाउन. ये दो वर्ड्स को क्या किया है? एक किया गया है, इंडिया गेट. सो अगेन वन मोर सेंटेंस, फर्स्ट लेटर T कैपिटल and then Raj is a name, R capital. So here we have punctuated these sentences. first letter capitalized, oh dear ये एक exclamation mark है. then these are quotation mark, ये जो दो देख रहे हैं आप comma types, these are dialogue box और quotation marks. जो लोग बात करते हैं उन बातों को quotation mark में हम डालते हैं. so we have solved this like this. And after best a comma should be there because we are taking a pause there. ठीक है? So now we are going to solve one more exercise. Let's talk. Actually ये हमें live class में भी solve करना है, but I will give you some idea about it. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. Yellow box है, इसमें 8 things हैं. You can see 6 of them in the picture. इनमें से 6 ऐसे चीज़ें हैं जो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं. 2 चीज़ें नहीं देख सकते. You cannot see the other 2. 8 थिंग्स हैं जिसमें से 6 थिंग्स हम लोग देख सकते हैं एंड 2 थिंग्स नहीं देख सकते, दिखाई नहीं दे रहा है. राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी. सो लेट्स सी विच थिंग्स वी कैन सी. डक्स, कैन वी सी? यस. मैट, yes. dog, can we see dog? no. girl, can we see girl? yes. boy, yes. tree, yes. fountain दिख रहा है यहाँ पे? no.
flower? Yes, we can see the flower. So what we can't see is fountain and dog. Dog और fountain हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं. So we will see duck, we can see mat, we can see girl, we can see boy, we can see. You can also write tree and flower. ठीक है? Easy. It was right. Isn't it easy? Yes, it is. Now look at the picture again. Describe the picture. So अभी पिक्चर को देखो. पिक्चर में क्या क्या चल रहा है बोलो. A boy and girl come for picnic. A boy and girl come for picnic. एक लड़का और लड़की पिकनिक के लिए आते हैं. Ducks are swimming in pond. ये क्या है? एक pond है, पानी का छोटा सा क्या है? Pond है. So who are swimming in there? Ducks are swimming in there. Ducks are swimming in pond. The girl is pointing करना मीन्स ऐसे पॉइंट करना, ऐसे दिखाना. So girl is pointing towards a bird. एक बर्ड के तरह, एक बर्ड के पास क्या कर रही है? ऐसे पॉइंट कर रही है, ऐसे दिखा रही है. A butterfly is sitting on a yellow flower. A butterfly is sitting on a yellow flower. This is why. Okay? येलो फ्लावर पे कौन बैठा है? एक बटरफ्लाई. ओके. नेक्स्ट इज, सो दिस इज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो. अजित लव्ड फ्लावर्स. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ. अजित को हमेशा से फ्लावर्स बहुत पसंद थे. उसको हमेशा से क्या चाहिए था? एक गार्डन चाहिए था अपने लिए, हिमसेल्फ. और हिमसेल्फ मीन्स अपने लिए, उसके खुद के लिए. मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया. मोहन उसका जो फ्रेंड है उसने उसे एक आइडिया दिया. क्या दिया? आइडिया दिया. ही सेड वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश. वाई? क्यों? हम तो एक गार्डन डिश में ही बना सकते हैं. हाँ, अजित लाफ्ड. अजित हंसता है. अ गार्डन इन अ डिश. एक डिश में गार्डन. डिश मीन्स एक जो प्लेट रहती है, एक छोटा सा पतला एक प्लेन बर्तन रहता है. वी कॉल इट a dish. Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. Dish gardens क्या रहते हैं? Tiny means छोटे से गार्डन रहते हैं जो कहाँ प्लांट किए रहते हैं? छोटे से डिश में. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on a window sill. तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक डिश लेना चाहिए और उसमें क्या डालना चाहिए? सैंड, मैन्योर और छोटे छोटे पत्थर. और उसमें टाइनी क्या डालने हैं? हमें प्लांट्स डालने हैं, पेड़ों को उगाने हैं. राइट? और यहाँ इसे कहाँ पे रखना है? विंडो सिल. सी, कैन यू सी दैट विंडो? कैन यू सी दैट विंडो? वहाँ पे जो एक छोटा सा प्लेस है जहाँ कुछ रख सकते हैं, उसे कहते हैं विंडो सिल. So we can place that dish in windowsill, right? Right. So you can also do this. Glass breaks. Second exercise is glass breaks easily. Glass जो है easily break होता है. कांच. Glass means कांच. ये तो easily break हो जाता है, means टूट जाता है. When it is dropped. कब टूटता है? जब हम इसे ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं, जब गिर जाता है. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? Circle the things that can. So क्या आपको लगता है कि मड फ्लावर पॉट आपने देखा है जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं? फ्लावर पॉट जो मड का रहता है, जो मिट्टी का फ्लावर पॉट रहता है, अगर वो गिर जाता है तो क्या टूट जाएगा आसानी से? डू यू थिंक सो? ऑफ कोर्स. ये मिट्टी का जो पॉट रहता है, अगर वो ऊपर से गिरता है, ड्रॉप होता है, तो ऑब्वियसली ये गिर जाएगा. वुडन टेबल गिरेगा? सॉरी, वुडन टेबल अगर गिर जाता है तो इजीली टूट जाएगा? नो, उसे तोड़ना बहुत ही कठिन है. वो टूटने से, सिर्फ गिरने से नहीं टूटता है. ग्लास स्पून, कांच का स्पून अगर ऊपर से गिरता है तो टूट जाएगा? यस, ग्लास बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, अगर वो ऊपर से गिरती है तो आराम से टूट जाएगी. व्हाट अबाउट प्लास्टिक कप? व्हाट अबाउट प्लास्टिक कप एंड प्लास्टिक वाटर बॉटल? कैन दे ब्रेक इजीली? नाउ सी हियर, दिस इज़ अ प्लास्टिक बॉटल. ठीक है, ये एक प्लास्टिक बॉटल है. कैन इट ब्रेक
इज इट इजी टू ब्रेक इट? क्या ये ऐसे गिरने से, ऐसे फेंकने से, गिरने से टूट जाती है? सी हियर, कैन इट ब्रेक इजीली? नो, राइट? तो ये नहीं टूटेगी। सो व्हाट अबाउट बुक्स? क्या बुक्स नीचे गिरने से टूट जाते हैं? नो, राइट? सो क्या क्या टूटेगा, उसे सर्कल करना है। सर्कल द थिंग्स दैट कैन मीन्स जो ब्रेक होती है, दैट कैन ब्रेक इजीली। सो कांच का स्पून, ग्लास स्पून टूट जाएगा? ऑफ कोर्स टूट जाएगा। टेबल टूटेगा? नहीं। सी दिस टेबल, अगर आप इसको फेंकते हो तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा? नहीं। सो फ्लावर पॉट टूट जाएगा? यस। प्लास्टिक वाटर बॉटल? नो। बुक्स? नो। प्लास्टिक का कप अगर ये मड का या क्ले का कप होता तो टूट जाता, कांच का होता टूट जाता, बट प्लास्टिक का कप इजीली टूटेगा? आई डोंट थिंक सो टूटेगा। प्लास्टिक के कप जल्दी नहीं टूटते हैं, राइट? सो दीज टू आर द थिंग्स विच कैन ब्रेक। ओके, सो नेक्स्ट इज which of the following actions would make others happy, unhappy? Actions means जो आप चीज़ें करते हैं। सो आप जो चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो करने से सामने वाला एक तो हैप्पी होता है या फिर अनहैप्पी होता है। सो वी नीड टू राइट दोस हियर। एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी। यहाँ पे लिखेंगे वो एक्शंस जो लोगों को हैप्पी करती हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स क्या करेगा? दूसरों को, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर अंकल आंट, योर टीचर्स, तो आपके अंकल आंट, टीचर्स, फैमिली खुश होंगे या दुखी होंगे? ऑब्वियसली खुश होंगे। दे विल बी वेरी हैप्पी दैट दिस किड इज रिस्पेक्टिंग मी, गिविंग मी रिस्पेक्ट। नॉट सेइंग थैंक यू, इफ़ समवन डज समथिंग टू यू, अगर कोई आपको कुछ फेवर करता है एंड इफ़ यू डोंट से थैंक यू, विल ही और शी फील गुड और बैड? बैड, नो, अनहैप्पी फील करेगा। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं एंड वो सामने वाला अगर थैंक यू नहीं बोलता तो आपको बुरा लगेगा, राइट? सो एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी इज नॉट सेइंग थैंक यू। बीइंग पोलाइट, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करने से क्या होता है? सामने वाला खुश होता है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ऑल्सो विल बी हैप्पी, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, दिस विल मेक योर फ्रेंड हैप्पी, नो? अगर आपका फ्रेंड सिक है, मीन्स बीमार है, इफ़ यू विजिट हिम और हर, ही विल बी हैप्पी। ओके? एंड नॉट शेयरिंग, किसी के साथ चीज़ें नहीं शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ब्रदर और सिस्टर एंड इफ़ यू डोंट शेयर योर टॉयज विथ हिम और हर, विल ही और शी फील हैप्पी? नो, दे विल फील अनहैप्पी। अगर आपके भाई बहन हैं और उन्हें आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं तो क्या उनको खुशी होगी? ऑब्वियसली नहीं, उनको दुख होगा। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? इफ़ यू वॉच टेलीविजन ऑल डे, अगर आप टेलीविज़न हमेशा देखते बैठते हो तो आपके मम्मी पापा को, भाई बहन को अच्छा लगेगा? नो, दे विल फील बैड, नो? क्योंकि आप स्टडी नहीं कर रहे हो, कुछ हिल डुल नहीं रहे हो, खेल नहीं रहे हो। सो योर पेरेंट्स विल फील अनहैप्पी। टेलिंग लाइज मीन्स झूठ बोलना, सामने वाले से झूठ बोलना। क्या ये सामने वाले को हैप्पी करता है? अनहैप्पी? ऑब्वियसली अनहैप्पी। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट? बीइंग ग्रीडी मीन्स मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब चाहिए, ऐसे क्या करने वाला? ऐसे बिहेव करने वाला। सो बीइंग ग्रीडी इज गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग, नो? फॉर एग्जाम्पल, you have 4 shirts, 4 dresses, but you are still asking your mom and dad to bring more dresses to you. Suppose you have many toys, still you are asking for other toys and you are taking other things, others toys also. So इसे greedy होना कहते हैं. Is it a good thing or bad thing? It is a very bad thing. Caring for pets, पेट्स को केयर करना, पेट्स की देखभाल करना, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? इससे पेट भी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, राइट? किसी की केयर करना, किसी की देखभाल करना इज़ अ वेरी गुड डीड। ये एक बहुत अच्छा काम रहता है, इससे हम भी खुश होते हैं, सामने वाला भी खुश होता है। गेटिंग एंग्री इजीली, जल्द से गुस्सा आना, बहुत ईजिली गुस्सा आना।
इज़ इट अ गुड थिंग? डज इट मेक एनी वन हैप्पी? नो। सामने वाले को अगर आप हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, तो सामने वाला अनहैप्पी होगा। बीइंग ऑनेस्ट इज़ अ गुड थिंग, नो। अगर किसी के साथ आप वफादारी से रहते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, किसी को चीट नहीं करते हैं, तो सामने वाला तो बहुत खुश होगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक पीपल हैप्पी। Respecting elders, being polite, playing with friends, visiting a sick friend, being honest, caring for pets. These are the things which make people unhappy. Not saying thank you, not sharing, being greedy, getting angry easily, watching television all day and telling lies. So let's listen and read and write. ठीक है? There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. Koel was singing happily. ये कोयल है, एक bird है. She was singing happily. Singing means गाना गा रही है. कैसे? Happily, बहुत खुशी से. Suddenly she heard someone crying. वो क्या सुनती है? कोई रो रहा है. It was her friend, the peacock. She flew to him and asked. पिकॉक जो उसका फ्रेंड था वो रो रहा था, और वो पिकॉक के पास जाती है और पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो भाई? तो शी आस्क, व्हाई आर यू क्राइंग? आप भी अपने फ्रेंड से पूछते हो ना, व्हेन ही इज और शी इज क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग डियर? सो पीकॉक सेज, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट. नाउ लुक एट दिस पीकॉक, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, नो? लुक एट इट्स फेदर्स. पीकॉक के फेदर्स कैसे हैं? बहुत ही सुंदर हैं. फिर भी पीकॉक क्यों रो रहा है? उसको लगता है उसके पैर गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, राइट? सुंदर नहीं है. Some things make you feel happy, some things make you feel sad. Write a poem on this picture. अगर आपको इस पिक्चर पे आपको पोएम बनानी आती है, then you should write it. So इस पिक्चर का मतलब ये है कि हमारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ रहती हैं, कुछ बुराइयाँ भी रहती हैं, but we should concentrate on things which are nice. We should always feel good about whatever we have. ठीक है? So now there is an activity. हमें एक पेपर लेना है एंड उसका फर ट्री बनाना है. वी नीड टू मेक दिस ट्री. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सेंड यू अ वीडियो ऑफ दिस. यू नीड टू look at that video and you need to make a tree like this. You can make other kind of trees also. ठीक है? So see you in the next class. Till then, take care and study well. And look at these pictures. I'm showing it again. You can pause here and you can write it. ठीक है? And what you need to do? You need to raise the quality of this video. Video का quality बढ़ाओ एंड उसमें देखो. ठीक है? अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी दी वर्ड्स. ठीक है? सो सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल.